نماز نہ پڑھتے ہیں، روزہ نہ رکھتے ہیں، حج نہ کرتے ہیں، زکات نہ دیتے ہیں، لاکھ گنہگار صحیح مصطفیٰ کا دامن ملے گا تو فرشتے کہیں گے کہ ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد نماز مغرب سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور بڑی محبتوں کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ عالی جناب مرحوم رفیق صاحب کے، حنیف صاحب کے ایصال ثواب کے سلسلے سے ان کے بچوں نے، گھر والوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، اور ابھی آپ عشق مصطفیٰ کا اثر دیکھ رہے تھے کہ یقیناً جب مصطفیٰ کے عشق کی بات آتی ہے تو آنکھ سے آنسو کا قطرہ خود بخود نکلنے لگتا ہے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی بات ہے جس نے اپنی نگاہ سے کبھی مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، اپنی نظروں سے کبھی مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، لیکن جب عشق کی بات آتی ہے تو دل تڑپنے لگتا ہے۔ تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا کہ جس بلال نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو، جب میرے آقا اس دنیا سے پردہ کر رہے ہوں گے تو حضرت بلال کے دل پر کیا گزرا۔ آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ جو آواز کھانے کے پینڈل سے آ رہی ہے وہ آواز آپ کے درود کی آواز میں دب جائے، اور اس نیت کے ساتھ آج مکارم محلہ کی سرزمین سے مصطفیٰ کی محبت اپنے دل میں بسا کر کے اس عقیدت کے ساتھ کہ آپ کے درود کی آواز یہاں سے نکلے، دادا سرکار کے روزے سے ٹکرائے اور دادا سرکار کی روح کو ساتھ لے غوث بنگالہ کے مزار پر پہنچے، غوث بنگالہ کی روح کو ساتھ لے بہار کی سرزمین پر پہنچے، شرف الدین یحییٰ منیری کی روح کو ساتھ لے کچھوچا کی وادی میں پہنچ جائے، مخدوم اشرف کی روح کو ساتھ لے کلیر کے محلے میں پہنچے، صابر علاء الدین کی روح کو ساتھ لے نظام الدین کی بارگاہ میں پہنچے، محبوب الہی کی روح کو ساتھ لے مہرولی کی سرزمین پر پہنچے، قطب الدین کی روح کو ساتھ لے اجمیر کی دھرتی پر پہنچ جائے، غریب نواز کی روح کو ساتھ لے بغداد کے محلے میں پہنچ جائے، اور بغداد والے سرکار کی روح کو ساتھ لے حسین کی بارگاہ میں پہنچے، حسین کی روح کو ساتھ لے نجف کے محلے میں پہنچے، مولا علی کی روح کو ساتھ لے اور مدینے کی گلیوں میں پہنچ جائے، روضہ رسول سے کہے کہ یا رسول اللہ مکارم محلہ کی سرزمین سے آ رہے ہیں جہاں کے آپ کے دیوانے، آپ کے مستانے مچل مچل کر کے درود کا تحفہ پڑھ رہے تھے، تو میرا ایمان کہتا ہے کہ مصطفیٰ خدا کی بارگاہ میں کہیں گے کہ مولا کریم جہاں کے میرے دیوانے مچل مچل کر کے میرے عشق میں درود کا تحفہ پڑھ رہے تھے، قیامت کے میدان میں وہ میرا دیوانہ کہیں بھی پھر رہا ہوگا، میری کملی میں چھپنے کی جگہ دے دینا، اور قیامت کے میدان میں جب مصطفیٰ کا دامن ملے گا، آپ گنہگار صحیح، بدکار صحیح،
खताकार सही, नमाज ना पढ़ते हैं, रोजा ना रखते हैं, हज ना करते हैं, ज़कात ना देते हैं, लाख गुनहगार सही मुस्तफा का दामन मिलेगा तो फरिश्ते कहेंगे कि ढूंढाई करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले इसाले सवाब। इस नियत के साथ आप दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। मेरी आदत नहीं है कि आप सुभान अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, मर्जी आपकी सुभान अल्लाह कहिए ना कहिए, लेकिन एक मर्तबा मचल करके अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद का तोहफा पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़मी के गुल फलक का हर सितारा मुस्तफा का है, ज़मी के गुल फलक का हर सितारा मुस्तफा का है, जहां में जो भी है सारा का सारा मुस्तफा का है। ज़मी के गुल फलक का हर सितारा मुस्तफा का है, जहां में जो भी है सारा का सारा मुस्तफा का है। और फलक पे अपना सीना चीर कर चांद ये बोला, अरे मैं टुकड़े क्यों ना हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का, मैं टुकड़े क्यों ना हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है। और या रब मेरा नसीब चमकता दिखाई दे, या रब मेरा नसीब चमकता दिखाई दे, मेरा गुले उम्मीद महकता दिखाई दे। और सजदा वहां करो जहां काबा दिखाई दे, सजदा वहां करो जहां काबा दिखाई दे, सजदे से सर उठे तो मदीना, सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे। आज की ये महफिल पाक ईसाले सवाब यानी कि अज़मत वालिदैन के नाम पर सजाया, इसलिए बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अज़मत वालिदैन पर थोड़ी देर गुफ्तगू कर दूं, वरना जब मैं मद्दाए खैरुल अनाम आली जनाब अरबाज रज़ा सल्लल्लाहु से नाते मुस्तफा सुना तो मैंने सोचा कि इश्क़ मुस्तफा पर बोल दूं, लेकिन बैनर जो पीछे लगा हुआ है अज़मत वालिदैन है, इसलिए बेहतर और मुनासिब समझता हूँ इसी पर चंद मिनट गुफ्तगू करो। रब तबारक व तआला मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक किया करो, अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक किया करो। अभी आपने हाफिज नसीम साहब किबला से जो खिताबत सुने यही उन्होंने बयान किया, अपने वालिदैन से मोहब्बत किया करो। और अल्लाह का कुरान है, खुदा फरमाता है अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक किया करो। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब तुम अपने वालिदैन के साथ अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत करोगे, उधर तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे, इधर मदीने वाले मुस्तफा खुश होंगे। और जब मदीने वाले मुस्तफा खुश हो जाएंगे तो कायनात को बनाने वाला खुदा खुश हो जाएगा। जब कायनात को बनाने वाला खुदा खुश हो जाएगा तो यकीनन जन्नत के पीछे भागने की जरूरत नहीं। आज लोग अजमेर जाते हैं, अरब की सरजमीन पर जाते हैं, हज बैतुल्लाह करते हैं, लेकिन जरा अपने सीने पर हाथ रख करके बताना, हज बैतुल्लाह करने के लिए 5 लाख रुपया तुम खर्च कर रहे हो, अजमेर की धरती पर जाने के लिए तुम 10,000 खर्च कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे घर पर तेरी बूढ़ी माँ है, अगर तुम्हारे घर पर तेरे बूढ़े बाप है, अगर तेरे बूढ़े बाप कहे कि बेटा मुझे 10 रुपया दे दो, मैं दवा लेकर के आऊंगा, बूढ़ी माँ अगर कह दे कि मुझे 10 रुपया दे दो, मैं कोई सामान खरीद करके लाऊंगा, अगर बेटा मुंह टेढ़ा कर दे तो याद रखो, एक हज क्या अगर लाखों हज कर लोगे तो सारी हज को अल्लाह तबारक व तआला तेरे चेहरे पर मार देगा। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं, अगर तेरी माँ जिंदा है, अपनी माँ को मोहब्बत से एक मर्तबा देख ले तो तुझे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा।
हज का सवाब नहीं, हज मकबूल का सवाब। लेकिन आज हमने माँ बाप की कदर समझा नहीं। माँ बाप अगर जिंदा रहते हैं, हम माँ बाप की कदर नहीं समझते। लेकिन आओ जरा सुनो मुसलमानों, माँ बाप कहते किसको है? अरे माँ वो है जिसने 9 महीने तक अपने बच्चों को पेट में रखा। बाप वो है जो अपने बेटे को, अपने बच्चों को कांधे पर सवार होकर के सवारी करना सिखाया, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। आज हम अपने माँ बाप की कदर क्या समझे? आओ मैं आपको बताता चलो। इसी जमीन के ऊपर में बंगाल से हट करके जाइए तो एक झारखंड की वादी है, उसी झारखंड में एक रांची की जगह है, उसी रांची के किनारे में एक छोटा सा गांव है, उसी गांव में एक माँ है, एक बाप है, उनके घर में एक 6 साल का बेटा है और माँ बाप अपने बच्चे को बड़ी मोहब्बत से पाल रहा है, बड़ी मेहनत से पाल रहा है। अचानक बच्चे की तबीयत खराब होती है। जैसे ही बच्चे की तबीयत खराब हुई, माँ बाप का दिल तड़प उठता है। जैसे ही माँ बाप का दिल तड़पा था, बाप अपने बेटे को सीने से लगाता है, रांची के हॉस्पिटल में पहुंचता है और अपने बच्चे को एडमिट करता है। जैसे ही एडमिट किया, डॉक्टर ने नब्ज को पकड़ा था, हाथ को पकड़ा था और पकड़ने के बाद कहा था कि इसे आईसीयू में डाल दो। अब डॉक्टर ने बच्चे को आईसीयू में डाला था। जरा सुनना प्यारे, फकत 6 साल की उम्र है और 6 साल की उम्र में माँ बाप अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करता है। अगर बेटा कह दे मुझे चॉकलेट चाहिए तो बेटे को मांगने से पहले बाप ला करके दे देता है। अगर बच्चा कहे कि मुझे बिस्कुट का पैकेट चाहिए तो मांगने से पहले बाप ला करके दे देता है। अब जरा सुनना प्यारे, 6 साल की उम्र है, 6 साल की उम्र में बच्चे की तबीयत खराब हुई, रांची के हॉस्पिटल में डाला, डॉक्टर ने आईसीयू में डाल दिया। आईसीयू में डालने के बाद चंद घंटा इलाज करता है। इलाज करने के बाद डॉक्टर बाहर निकलता है। जैसे ही डॉक्टर बाहर निकला था, बाप ने पूछा था, डॉक्टर बता तो सही मेरे बेटे की हालत क्या है, मेरे बेटे की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने कहा था, ए नौजवान सुन ले, तेरे बेटे की हालत बहुत सीरियस है। अब वो बाप पूछता है, एक डॉक्टर बता तो सही आखिर मेरे बेटे को हुआ क्या है? तो डॉक्टर ने कहा था कि तेरे बेटे का इलाज कराना है तो झारखंड को छोड़ो और बंगाल चले जाओ और बंगाल के कोलकाता में ले जाकर के डाल दो। कोलकाता में डालने के बाद हो सकता है कि तेरे बेटे का इलाज हो जाए और अच्छा इलाज हो जाएगा। इतना सुनना था। बाप ने अपने बेटे को सीने से लगाया और झारखंड के रांची से निकला, बंगाल की गाड़ी पकड़ा और कलकत्ता पहुंच जाता है। पीजी में ले जाकर के एडमिट किया। पीजी में एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने आईसीयू में डाल दिया। चंद घंटे के बाद डॉक्टर बाहर निकलता है। अब बाप पूछता है, डॉक्टर बता तो सही मेरे बेटे की कंडीशन क्या है, मेरे बेटे की हालत क्या है? तो डॉक्टर ने कहा था, ए नौजवान सुन ले, तेरे बेटे की किडनी खत्म हो चुकी है, तेरे बेटे का गुर्दा खराब हो चुका है। इतना सुनना था। वो बाप कहता है, ए डॉक्टर सुन ले, जितनी दौलत चाहिए देने के लिए तैयार हो, जितना पैसा चाहिए देने के लिए तैयार हो। अगर जमीन बेचनी पड़े तो बेच दूंगा, मकान बेचनी पड़े तो बेच दूंगा। अरे खून का एक एक कतरा अगर बेचना पड़े तो मैं बेच दूंगा, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बचाऊंगा। एक डॉक्टर सुन ले, बता तो सही मेरे बेटे की जिंदगी बचेगी कि नहीं? तो डॉक्टर ने कहा था, नौजवान अगर तू अपने बेटे को बचाना चाहता है तो कोलकाता को छोड़ और भेलोर चला जा। अगर तू अपने बेटे को बचाना चाहता है, पैसा खर्च होगा, तेरे बेटे की जिंदगी बच जाएगी, तू यहाँ से भेलोर लेकर के चला जा। अब बाप अपने बच्चे को, 6 साल का बच्चा है, सीने से लगाता है, कोलकाता से भेलोर के लिए निकलता है। भेलोर के हॉस्पिटल में डाला था, फिर डॉक्टर ने आईसीयू में डाला। आईसीयू में डालने के बाद डॉक्टर बाहर निकलता है। अब बाप पूछता है, डॉक्टर बता तो सही मेरे बेटे की हालत क्या है? डॉक्टर की आंखें अश्कबार हो जाती है।
है, डॉक्टर के आंख से आंसू निकलने लगता है। जैसे ही डॉक्टर के आंख से आंसू का कतरा देखा था तो बाप पूछता है, डॉक्टर बता तो सही आखिर तू रो क्यों रहा है, मेरे बेटे की हालत क्या है। तब डॉक्टर ने कहा था, नौजवान तेरे बेटे की जिंदगी अब बच नहीं पाएगी, तेरा बेटा अब बच नहीं पाएगा, तू यहाँ से अपने बेटे को अपने घर लेकर के चला जा। हो सकता है कि 2-4 दिन तेरे बेटे की जिंदगी बचे, और अगर 2-4 दिन तेरे बेटे की जिंदगी बचेगी तो माँ बाप के साथ में रह करके, भाई बहन के साथ में रह करके, रिश्तेदार के साथ में रह करके चंद दिन की जिंदगी को काट ले। इतना सुनना था। वो बाप डॉक्टर के पैरों में गिर जाता है और गिरने के बाद सारों कतार रोने लगता है और कहता है, डॉक्टर पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, रुपया चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो डॉक्टर ने कहा था, ए नौजवान सुन ले, तेरे बेटे की किडनी खत्म हो चुकी है, गुर्दा खराब हो चुका है, अब दुनिया का कोई डॉक्टर तेरे बेटे को बचा नहीं पाएगा, तू यहाँ से घर लेकर के चला जा। इतना सुनना था। अब बाप उठता है, अपने बेटे के पास जाता है, सारे कतार रोने लगता है। जैसे ही रोते हुए बाप को 6 साल के बच्चे ने देखा था तो 6 साल का बेटा पूछता है, ए मेरे अब्बू बता तो सही तू रो क्यों रहा है। तो बाप ने कहा था, बेटा क्या बताओ, मैं तेरे इलाज कराने के लिए रांची को छोड़ा, बंगाल पहुंचा, बंगाल को छोड़ा, बेलोर पहुंचा, लेकिन तेरी जिंदगी अब बच नहीं पाएगी। तब बच्चे ने कहा था, बाबू बता तो सही आखिर मुझे हुआ क्या है। तो बाप ने अपने सीने पर पत्थर रख करके कहा था, ए मेरे लाल डॉक्टर ने कहा है तेरी किडनी खराब हो चुकी है, तेरा गुर्दा खराब हो चुका है। इतना सुनना था। तो वो बच्चा कहता है, ए मेरे अब्बू बता तो सही डॉक्टर ने क्या कहा। तब बाप कहता है, ए मेरे लाल तो डॉक्टर ने कहा है कि 2-4 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी, तेरा इंतकाल हो जाएगा। इतना सुनना था। अब वो 6 साल का बच्चा कहता है, ए मेरे अब्बू जब डॉक्टर ने कहा है कि 2-4 दिन के बाद मेरी मौत हो जाएगी, एक काम कर तू मेरे घर फोन कर, मेरी माँ को यहाँ बुला। इतना सुनना था। बाप पूछता, बेटा तू अपनी माँ को यहाँ लाने के लिए क्या कह रहे हो। तब बच्चे ने कहा था, वो मेरी माँ को बुलाओ तो सही। अब बाप ने फोन किया इनकी माँ को और कहा कि मेरी शरीके हयात, अगर तू अपने बेटे को देखना चाहती है तो जितनी जल्दी हो सके झारखंड को छोड़ करके बेलोर चला। कसम खुदा के मुसलमानों, माँ की मोहब्बत होती है, माँ का प्यार होता है। अगर बेटा प्रदेश में अगर तड़पता है तो माँ को यहाँ खबर हो जाती है। अगर उससे सवाल करो तो माँ कहेगी, पता नहीं मेरा दिल घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे के ऊपर में कोई आफत आई है। जैसे ही बाप ने फोन किया था, अगर तू अपने बेटे को देखना चाहता है तो जल्दी से यहाँ चला। अब माँ जिस हाल में थी, जिस कपड़े में थी, वहां से निकलती है, बेलोर पहुंचती है और बेलोर पहुंचने के बाद जैसे ही अपने बेटे के कमरे में जाती है, कसम खुदा के मुसलमानों, सामने बेटे का चेहरा है, दूर माँ है। माँ की नजर ने जैसे बेटे के चेहरे को देखा था, माँ तड़प करके जमीन पर गिरती है, बेहोश हो जाती है। अब बाप दौड़ा हुआ जाता है, पानी लेकर के आता है, अपनी बीवी के चेहरे पर डालता है, बीवी होश में आती है, तोड़ करके बेटे के पास पहुंचता है और एक बाप और अपने बेटे को चूमना शुरू कर देता है। कभी पेशानी को चूम रहा है, कभी गालों को चूम रहा है, कभी लबों को चूम रहा है और कहते जा रही है, ए मेरे लाल तुझे 9 महीने तक मैंने पेट में पाला, बड़ी मोहब्बतों के साथ तुझे परवान चढ़ाया, ये सोच करके कि बुढ़ापे की लाठी बनेगी। लेकिन ए मेरे लाल डॉक्टर ने कहा है कि तेरी जिंदगी नहीं बचेगी। इतना सुनना था। 6 साल का बच्चा कहता है, ए मेरी माँ जरा 2 मिनट सब्र तो कर ले। अब वो बच्चे ने अपने बाप से कहा था, ए मेरे अब्बू आखिरी वक्त है, अगर तेरा बाप अगर तुझसे कुछ मांगे तो क्या तुम दोगे। इतना सुनना था। बाप ने कहा था, लाल मांग कर तो दे, खून का एक एक कतरा निचोड़ करके तेरे कदमों में रख दूंगा। इतना सुनना था।
बेटे ने कहा था तो मुझे खून का कतरा नहीं चाहिए, एक गमला मंगाया जाए। एक गमला मंगाया गया। जरा सुनना प्यारे, माँ बाप की मोहब्बत क्या होती है और माँ बाप की ताकत क्या होती है। बेटे ने कहा था वो एक गमला लेकर के आओ। बाप एक गमला लेकर के आते हैं। अब बाप पूछता बेटा गमला लेकर के आ गया, अब क्या करना है। तब बच्चे ने कहा था वो इस गमले में पानी डाल दो। गमले में पानी डाल दिया गया। अब बाप पूछता कि लाल अब क्या करना है। इतना सुनना था। वो बच्चा जवाब देता है कि मेरे माँ के पैरों में जो चप्पल है उस चप्पल को निकाल करके पानी में डाल दो। अब बाप ने अपनी बीवी के पैरों के चप्पल को निकाला और पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद चंद मिनट तक पानी में रहा। अब फिर बच्चे ने कहा था वो अब चप्पल को पानी से बाहर निकाल दो। चप्पल को पानी से बाहर निकाला गया। बाप पूछता है मेरे लाल अब क्या करना है। तब बच्चे ने कहा था वो अब इस पानी को मुझे पिला दिया जाए। कसम खुदा के मुसलमानों, एक बार पिया, 2 बार पिया, 3 बार पिया, 4 बार पिया, 5 बार पिया। पंजतने पाक का ऐसा सदका हुआ कि 5 बार पानी पीने के बाद अब बच्चे ने कहा था वो अब डॉक्टर को बुलाया जाए। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर करीब आता है। डॉक्टर करीब आने के बाद अब बच्चे ने कहा था डॉक्टर अब मेरा दोबारा चेकअप कर। अब फिर आईसीयू में डाला जाता है। चेकअप किया जाता है। कसम खुदा के मुसलमानों, चेकअप करने के बाद डॉक्टर कांपने लगता है। जब डॉक्टर कांपने लगा तब 6 साल का बच्चा कहता है एक डॉक्टर बता तो सही तू कांप क्यों रहा है। तो डॉक्टर ने कहा था ए बेटा सुन ले, अभी से चंद घंटे पहले जब मैंने तेरा चेकअप किया तेरी किडनी भी खराब हो चुकी थी, गुर्दा भी खराब हो चुका था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। चंद घंटे पहले जब तेरा चेकअप किया तो बहुत सारी बीमारी थी। चंद घंटे के बाद जब दोबारा चेकअप किया तो सारी बीमारी खत्म हो गई है। आखिर वजह क्या है। तो बच्चे ने कहा था डॉक्टर सुन ले, अब तक तूने मेरा इलाज अपनी दवा से किया लेकिन अब मैंने अपना इलाज शरीयत मुस्तफा से कर लिया, फरमाने मुस्तफा से कर लिया। तो डॉक्टर ने कहा था ए बेटा बता तो सही फरमाने मुस्तफा का मतलब क्या है। तब बच्चे ने कहा था डॉक्टर मेरे आका ने फरमाया है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। मैंने उसी जन्नत के चप्पल को उठाया और जन्नत से लगी हुई मिट्टी को पानी में डाला और डाल करके जब पानी को पी लिया तो जन्नत की बरकत के सदके में रब ने मुझे सारी बीमारियों को खत्म कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने वालिदैन। जरा गौर फरमाए, ये तो माँ के कदम से लगने वाली चप्पल में के नीचे जो धूल है उस धूल में अगर इतनी बरकत है, इतनी ताकत है तो माँ के कदम में कितनी ताकत होगी। और जब माँ के कदम में इतनी ताकत है तो माँ के सर में कितनी ताकत होगी। इसलिए मुसलमानों वक्त बहुत कम है। 10 बजे प्रोग्राम खत्म होने वाला था, 10 भी पार हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर बोझ बनो। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मौला इन्हीं चंद बातों पर हम तमामों को अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। और